environment for sustaining life. Land, water, air, plant, and animals are the major component of the global environment. Population, food, and energy are the three fundamental problems facing mankind. ठीक है? Unemployment, inflation, crowding, dwindling resources, and pollution are all due to the factors like increasing population, high standard of living, deforestation, etc. Man has been tampering with the ecosphere for a very long time and is forced to recognize that environmental resources are scarce. Scarce है कि scarce है? Scarce होना चाहिए था, ठीक है? Environmental problems are really social problems. They begin with people as people के बाद with नहीं होना चाहिए था. They begin with people as cause and end with people as victim. हाँ ठीक है. They begin with people with as नहीं, with as cause नहीं, with नहीं होगा बाद में. And end with people as victims. Unplanned use of resources has resulted in the depletion of fossils, fuels, pollution of air and water, deforestation which has resulted in imbalance and draining away of national wealth through expenditure on oil and power generation. ठीक है, बड़ा easy passage है. Depletion of fossils and fuels, pollution of air and water and deforestation will never occur in case of, कभी नहीं होगा जब हम क्या करेंगे. आंसर बताइए. फर्स्ट का कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा? ऑफ रिसोर्सेज. थर्ड, ठीक है. सेकेंड, we face the three fundamental problems that are, क्या है? पॉपुलेशन, फूड एंड एनर्जी ही है. बोलिए भाई. ए ऑप्शन. यस. अच्छा, ये ऑप्शन. निशा का नेटवर्क सही हो गया क्या? यस. ठीक है. थर्ड, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन कॉजेज. आंसर बताइए. ए ऑप्शन. ठीक है. अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, क्राउडिंग, ड्विंडलिंग रिसोर्सेज एंड पॉल्यूशन. ठीक है. आज मेरा भी ना बीपी थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ है. 4 नंबर, नेशनल वेल्थ इज ड्रेन्ड अवे बाय स्पेंडिंग हैवीली ऑन. बताइए. ए ऑप्शन. ए ऑप्शन, राइट. The three major components of the global environment are, क्या है 3 major component global environment के? D4, right. ठीक है. इसी तरह दूसरा पैसेज कर ले हम लोग. इस पीडीएफ का क्या नाम है? 2022 पैसेज 14 ना. 2022 पैसेज 14. चलिए. Clouds are an essential part of the weather conditions which exist around us. Warm air rises upwards in the atmosphere carrying with it dust and moisture from evaporated surface water. At high altitudes, water is cooler and the vapor in the warm air reaches its dew point, where it changes either to small particles of ice or into water, thus forming clouds. Since clouds formation takes place at different heights and temperatures, clouds are of different
टाइप्स। देखिए कितनी अच्छी बात का है ना, डिफरेंट हाइट पे और डिफरेंट टेम्परेचर पे फॉर्मेशन होते हैं, इसलिए क्लाउड के प्रकार भी उसी हिसाब से अलग अलग होते हैं। There are basically three main types of clouds up to about 1 to 5 किलोमीटर from the ground, 1 से 5 किलोमीटर तक का जो होता है ये ग्राउंड के ऊपर। We generally see the first type called the stratus cloud. On occasions it is grey stratus cloud which bears light rain. In colder areas, the water in these clouds freezes, thus resulting in snowfall. Slowly rising warm air produces these clouds. Slowly rising warm air. Above these and up to 4 to 5 kilometer lie the cumulus clouds. The floppy shapes are a result of quickly rising warm air. Above the cumulus clouds at an altitude of about 14 kilometer, लगभग 14 किलोमीटर, float the cirrus type of clouds. Cirrus clouds are wispy clouds formed at such a high altitude that they contain only ice crystals. ठीक? Lying between these main types of clouds are other types like the stratocumulus, cirrocumulus, altostratus and cumulonimbus clouds. ये बिल्कुल ज्योग्राफी का ही उठा के दे दिया, एग्जाम का पैसेज है ये, ठीक है। ज्योग्राफी में से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। What do cirrus cloud contains? क्या कंटेन करता है भाई cirrus cloud? Ice crystals. Ice crystals. Ice crystals. ओके, तो फर्स्ट का डी हो जाएगा। आप जितने लोग क्लास ज्वाइन किए इनमें से किसी का ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी रहा है? नहीं। What are the three main types of clouds? 3 मेन टाइप ऑफ क्लाउड्स कौन होते हैं? डी फोर्थ सर। स्ट्रेटस, क्यूमुलस और सीरस। सीरस ने उसको साइरस पढ़ा। थर्ड, how are stratus clouds produced? स्टेटस क्लाउड कैसे बनते हैं? rising warm air. पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा। What does quickly rising warm air produces? A first. Cumulus clouds. Fifth, what are different types of clouds? अलग अलग प्रकार के, अच्छा why are different types of clouds? अलग अलग प्रकार के clouds क्यों होते हैं ना? Because the atmosphere carries with, हाँ बोलिए। 20 सेकंड। Because cloud formation takes place in different, सही है। ऑप्शन डी होना चाहिए ना सर? नहीं, आप क्वेश्चन को समझिए और डी ऑप्शन क्या कह रहा है उसको समझिए। डी ऑप्शन जो कह रहा है मैडम, रीना मैडम का है, बिकॉज ये सर बी ही है सर, हमने बी ही लगाया। बी से मैंने देख लिया था। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, लेके चले ना सेकंड? नो सर, नो डाउट। ओके, उसके बाद कुछ क्या है, ग्रामर वगैरह है क्या? हाँ, लग तो रहा है कुछ अलग से भी क्वेश्चन है। शोइंग अ डिसलाइक ऑफ इम्प्रॉपर, ये वन वर्ड है। 6 का क्या होगा सर? प्रिम। बी प्राइम। ओके, तो 6 का आपका हो जाएगा बी। फिर 7th का आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन क्या होगा? बी सेकंड। बी सेकंड एडिशन। ये सब देखिए, अगर आप लोगों को कोई ऐसा पैसेज मिला है
जिसमें ग्रामर के क्वेश्चन हो, पैसेज के अलावा ग्रामर के क्वेश्चन हो, या इडियम हो, या फ्रेजल वर्ब हो, वन वर्ड हो, स्पेलिंग हो, उस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पैसेज में हम वही डाले होंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, ओके। 8 नंबर, A person who leaves his own country, ये बढ़िया क्वेश्चन। A person who leaves his own country in order to go and live in another country, क्या होगा? थर्ड एमिग्रेंट। इसको इमी नहीं पढ़ेंगे, एमिग्रेंट। सी ऑप्शन, गुड। 9 नंबर, बोलिए क्या कर रही है? इसका सर जैसे आवाज करती, फिर से बोलिए सर। ऑप्शन ए होगा ना इसका? नहीं 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 नहीं, आप एक्सपेट्रिएट का मीनिंग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? हेलो, ओके सर, ओके सर। आप एक्सपेट्रिएट का मीनिंग एक बार देख लीजिएगा। क्या होता है एक्सपेट्रिएट का मतलब? रीना मैडम, देश निकालना, यानी कि सरकार, अथॉरिटी या जो भी राजा होगा वो ऑर्डर दिया सर। ये इसमें ये दे रहा ना, ऑर्डर दिया गया है ना उसको बाहर जाने के लिए। नहीं, ध्यान से पढ़िए। A person who leaves his own country in order to, ऑर्डर नहीं दिया गया, ये एक प्रीपोजिशन है। In order, ORDER, ऑर्डर टू, ये फ्रेज प्रीपोजिशन है और ये पर्पस बताता है। सर मेरे ये समझ में आ रहा था ना, इन ऑर्डर टू गो, मतलब कि उसको ऑर्डर दिया गया है। यस। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के उद्देश्य से, ठीक है? आदेश देने से मतलब नहीं है, ठीक है? ओके सर। भाव होता है विथ अ पर्पस, विथ अ पर्पस, ठीक है? तो क्या कह रहा है? पर्सन हु लीव्स, जो छोड़ता है, खुद से छोड़ता है। पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को खुद से छोड़ता है। इन ऑर्डर टू गो एंड लिव इन अनदर कंट्री, ठीक है? कि अपने, ठीक है, यस दूसरे देश में जाना और वहां रहने के उद्देश्य से, ठीक है? 9 नंबर, टू कट गॉर्डियन नट, क्या होता है? यस, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कौन बोला, क्या बोला? डिफिकल्ट टास्क सर, डी फोर्थ वाला। डी फोर्थ वन, टू परफॉर्म अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है? 10 नंबर, तेजू जी, मनोज जी, करे हैं कि नहीं ये सब आप लोग? नहीं है लग रहा है, आप लोग चले गए। तो जवाब दिया करिए, पार्टिसिपेट करिए भाई। One who is too careless to plan for the future, वह व्यक्ति जो इतना केयरलेस है, जो फ्यूचर के लिए प्लान कर ही नहीं सकता, क्या होगा? इम्प्रोविडेंट, ठीक है? चलिए, तो ये हो गया। मैं आप लोगों को आज भी कुछ मैसेज भेज दूंगा, आप लोग उसको करिएगा। नेटवर्क ना सही होने की वजह से ये क्योंकि उनको दिक्कत हो रही थी, हमने कहा कुछ तो हो जाए, ठीक है? ओके, तो हम आप लोगों को मैसेज भेज देंगे। और जैसा कि मैंने कहा था बहुत शुरुआत में ही आप लोगों को भेजा था, ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशन और मिसयूज ऑफ प्रीपोजिशन, या तो आप लोग उसको लिख लीजिए, लिए होंगे अभी तक, या प्रिंट आउट ले लें, व्हाट एवर मे बी द केस, ठीक है? अगले क्लास में जब मैं बैठूंगा तो मुझे कोई ये नहीं कहेगा कि सर अभी तक लिख नहीं पाए हैं या प्रिंट आउट नहीं ले पाए। बेहतर तो होगा कि आप लोग लिख लेते हैं, ठीक है? तो अगली क्लास में हम उसको लेके चलेंगे, सब लोग लिख के तैयार रहिए, बाकी पैसेज हम देते रहेंगे, ठीक है? ओके, ओके सर।